Hi, my students. So, presently we are learning our fourth science chapter, Teeth and Microbes. So, already we completed the terms like milk teeth, temporary teeth, then different kinds of teeth like incisors, canines, premolars, molars. Then parts of a tooth. What are the main parts of a tooth? Enamel, dentine, pulp. These are the main parts of a tooth. Then we discussed about tooth decay. What is the main reason of टूथ डिके इट इज़ कोज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन. जब हमने खाना खाता है इसके बाद जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल फूड पार्टिकल्स, इट विल गेट स्टक इन बिटवीन आवर टीथ. लेटर इट विल cause the growth of bacteria, and this bacteria it will produce an acid and it will damage our enamel. First they will damage our enamel, then it comes to dentine and pulp, then totally that can make our gum red, swollen and sore. And also there will be cavities, cavities which will cause a lot of pain. Okay, then we learned tips to keep teeth and gums healthy. How to keep our teeth and gums healthy, हमारा teeth और हमारा gums कैसे healthy रखना, स्वस्थ रखना, इसके बारे में पढ़ा किया. So moving to the last session, that is microbes. Okay, microbes. So microbes का मतलब क्या है? Microbes मतलब they are very small organisms. Okay, they are very small living things. We cannot see them with our naked eyes. हमारा आँखों से हमको देख नहीं सकेगा क्योंकि वो उतना छोटी होती है, इसलिए हमको हमारा आँखों से देख नहीं सकेगा. So microbes are very small organism. They cannot be seen with our naked eyes. हमारा आँखों से डायरेक्टली देख नहीं सकेगा. We can see them only through a microscope. सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से हमको ये माइक्रोब्स को देख सकते हैं. ओके, एंड वी कैन फाइंड दिस माइक्रोब्स एवरीवेयर. हमारा आजू बाजू में, हमारा सराउंडिंग में, हमारा एनवायरनमेंट में पूरा ये माइक्रोब्स होते हैं. लाइक इन एयर में होते हैं, वाटर में, सॉइल में, फूड में, सारा जगह में ये माइक्रोब्स होते हैं. लेकिन हमको देख नहीं सकेगा क्योंकि वो उतना छोटे होते हैं. ओके, एंड ये माइक्रोब्स होते हैं, इसमें यूज़फुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं. यूज़फुल मतलब उससे कुछ मदद होते हैं. ओके, यूज़फुल मतलब उससे कुछ मदद होते हैं. हार्मफुल मतलब क्या होते हैं? हार्मफुल मतलब उससे हमको कुछ बीमारी ये सभी होते हैं. ओके, सो माइक्रोब्स आर यूज़फुल टू अस वाइल सम आर हार्मफुल. कुछ माइक्रोब्स हमको यूज़फुल है, कुछ माइक्रोब्स हमको हार्मफुल है. The microbes which cause disease are called germs. Okay, those microbes which cause diseases to us, that kind of microbes are known as germs. इसको हमने germs कहते हैं, कीटाणु, है ना, कीटाणु कहते हैं. ओके, सो माइक्रोब्स विच कोज डिसीज, जो माइक्रोब से हमको बीमार सभी होते हैं, ऐसे माइक्रोब्स को हमने जेम्स कहते हैं. GERMS, जेम्स. ओके, सो दिस माइक्रोब्स, देर आर मेनली 4 काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स. ओके, माइक्रोब्स 4 टाइप का होते हैं: बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोसोवा एंड फंगी. ओके, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोसोवा एंड फंगी. So first let us see what is bacteria. Bacteria are single celled microorganisms. Microorganisms मतलब very small organisms, मतलब हमको डायरेक्टली देख नहीं सकेगा, उतना छोटे होते हैं. That is microorganisms. So bacteria are single celled microorganisms. They cause diseases like tuberculosis, टाइफाइड एंड डिफ्थीरिया. उसकी वजह से हमको ये ट्यूबरकुलोसिस, डिफ्थीरिया, टाइफाइड ये सभी बीमार होते हैं. ओके, सो ट्यूबरकुलोसिस इट एक्चुअली अफेक्ट्स आवर लंग्स. हमारा लंग्स को अफेक्ट होते हैं, हमको वेट लॉस हो जाएगा. देन नाइट स्वेटिंग, मतलब रात में सोने के टाइम बहुत स्वेटिंग हो जाएगी. इट इज़ अ वेरी डेंजरस डिसीज़. ओके, टीबी कहते हैं हमने.
Then diphtheria it actually affects our nose and throat. Okay, जो सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स सभी का सेम होते हैं, लाइक फीवर आएगा, देन कफ, देन weight loss, headache, vomiting. These are the symptoms of diphtheria. And typhoid also. Typhoid it start with a fever, then weight loss, then comes headache, stomach pain, vomiting, etc. Okay, so these are some dangerous diseases that is caused by bacteria. Second type of microbe, that is virus. So virus are also very minute organisms, बहुत छोटी है, we cannot see with our naked eyes, and we have to keep advanced microscope to study or to research about this kind of virus. वायरस बहुत छोटी है, उसको हमने ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से भी देख नहीं सकेगा. वी हैव टू कीप एडवांस्ड माइक्रोस्कोप, एंड दिस कॉज डिसीजेस लाइक फ्लू, मिसल्स, कॉमन कोल्ड एंड मम्स. ये सभी बीमार ये वायरस इन्फेक्शन की वजह से होते हैं. ओके, third type of microbe, it is protozoa. एंड प्रोटोसोवा मोस्ट ऑफ दम आर हार्मलेस. मतलब हार्मलेस मतलब मैंने बोला इससे हमको कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ बीमार कुछ नहीं होते हैं. ओके, सो मोस्ट ऑफ दम आर हार्मलेस, लेकिन सम कैन कोज डिसीज लाइक मलेरिया एंड डिसेंट्री. ओके, इसकी वजह से हमको मलेरिया एंड डिसेंट्री ये टू डिसीज होते हैं. ओके, and the last type of microbe, it is fungi. And some kinds of fungi we can see with our naked eyes, like a plants. okay, जो जंगल के अंदर सभी देखे तो उसके अंदर जो पेड़ होते हैं, डिकेइंग ट्रीज होते हैं, मतलब जो पेड़ डैमेज हो गया, ज़मीन में गिर गया, ऐसे पेड़ों में ये fungi it will grow up. Okay, so these are plant like organism, it will actually grow upon decaying matter. Okay, and some fungi it can attack human skin. हमारा skin को अटैक करके it will cause ringworm. Okay, ringworm मतलब खुजली की तरह. Okay, so it will feel very itchy, and that whole area it will turn into reddish color, and we will feel very itchy. So these are the 4 type of microbes. So we discussed about different type of microbes. Now let us see the symptoms of that diseases. Okay, ये disease सभी हो गए तो हमको क्या हो जाएगा, let us see. So already we told tuberculosis, diphtheria and typhoid, ये 3 बीमारी हमको बैक्टीरिया की वजह से होते हैं. ट्यूबरकुलोसिस, डिफ्थीरिया, टाइफॉइड. इसमें जो टीबी होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस को हमने टीबी कहते हैं. इट इज़ ए डेंजरस डिसीज, इवन इट कैन लीड टू आवर डेथ. उसकी वजह से हम मरने का भी चांस होते हैं. ओके, एंड मोस्ट ऑफ दिस डिसीजेस, ओके, मोस्ट ऑफ दिस डिसीज इट विल स्टार्ट विद ए फीवर. ये सारा डिसीज़ हमको एक फीवर के साथ शुरू हो जाएगा. देन इट विल टर्न इनटू थ्रोट पेन, बाद में कफिंग हो जाएगा, हेडेक, वोमिटिंग, स्टमक पेन. ऐसे दिस आर द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीजेस. ओके, सो ट्यूबरकुलोसिस एक्चुअली अफेक्ट्स आवर लंग्स. इसकी वजह से हमको वेट लॉस हो जाएगा. देन नाइट स्वेटिंग, रात में सोने के टाइम से भी पूरा बॉडी में पसीना से भी हो जाएगा. ओके, देन वायरस causes diseases like flu, measles, common cold and mumps. Okay, flu, measles, common cold and mumps. So mumps का मतलब क्या? Mumps it actually affects our parotid glands and salivary glands. Mumps हमारा जो salivary glands को, parotid glands को affect होते हैं. Okay, then dysentery की वजह से हमको ये dehydration, फीवर, वोमिटिंग ये सभी बहुत हो जाएगा. ओके, डिसेंट्री एंड मलेरिया, दिस आर द डिसीज कॉज्ड बाय प्रोटोसोवा. ये प्रोटोसोवा की वजह से होते हैं. देन द लास्ट वन फंगी.
फंगई की वजह से हमने बोला रिंगवेम होते हैं, रिंगवेम लाइक हिंदी में हमने इसको खुजली कहते हैं, लाइक विल फील इच्छी एंड द whole area it will turn into a red